Secretary, Pacific Magic College and Hospitals, to bless us with his kind words and give us some information about this program. Rahul sir, please. Thank you, Sarah ma'am. Sir, बहुत धन्यवाद करते हैं आपको नेक्स्ट ईयर। कोविड के इस दौर में जो बच्चे काफी स्ट्रेस है करते थे, उड़ान 2021 में उनको थेरेपी जो मुस्कान दी है, उनका जो स्ट्रेस, जो डांस के साथ स्ट्रेस का काफी संबंध है, योगा, डांस एंड इसका काफी मतलब संबंध है उसमें। तो जो कोविड 2021 उड़ान ने बच्चों को जो स्ट्रेस आउट किया है इस प्रोग्राम के तहत, तो सरोज मैडम को कोऑर्डिनेटर श्लोका में दिल से धन्यवाद अदा करूँगा और देश विदेश के जो बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं, सेमीफाइनल पहुँचे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये प्रोग्राम फाइनल लो है और बच्चे देते हैं, तो बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। 2021 is thanks to the COVID, an effort to counter the aftermath of COVID, but this is going to be the first lap of this amazing franchise that we are starting this year. This is the first milestone, and we are going to have 2002, 2023, and hopefully a lot of programs as we move ahead. But this year, we have already reached the semi-final event. It's a small reminder for everyone who has participated with a lot of passion and effort. I'm sure all your hard work and all your excitement is going to be appreciated, as you will see through the results, and of course through the appreciation of all the jury members. But as we proceed, we'd like to put small beautiful commas in the program. And the first one here today is of course everybody's favorite god, whether it's a younger person or a senior person, Ganesh Ji. And he's an integral part of most of the Kathak performances. So the coordinator and the main child of this amazing event, Shloka Agarwal, thought why not we start with his blessings also and take his blessings in a special Kathak sort of a way. So may I request Shloka to show us what she has got to show, and let's take a peek and take some blessings from Ganpati Ji also. Shloka, over to you. गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, दाता 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 दाता। मोदक
प्रिय मधु मंगलदाता विद्यारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। Wasn't it beautiful? Did you not feel the energy already? Awesome. Thank you, Shloka. You really loved out the spirit of us. And before we move ahead, small request to all our amazing program family members. I can see that you have joined us. We are already on Facebook Live, so come over there. And we would love for you to share anything that you want with us. Your experience with Quran, your journey, your observations, anything. What has been this journey for you when you were preparing for the event, when you gave your contributions, anything at all. Even if you want to share something about how dance helped you during the tough period of COVID, we would love to hear from you. If you want to do that, drop us a line on the chat box and be on the Zoom link, and we will be eager to hear something from you. Start with. Okay, a lot of people were very curious about why we conceived this program. Interestingly, the list we have with us, and as you can see, all the amazing community that has come from all over India, in fact, a lot of parts of the globe today, is spread all over. There are people from all age groups, people from all genres of dancing, and everybody is appreciating this effort. But it started with a very small thought. One day this team was sitting together and we were watching Life is Beautiful. This is an amazing movie about how to fight a crisis. In this movie, the father sees a lot of bloodshed all around. There are tears, there's pain, people are dying, there's no hope whatsoever. And somehow he makes sure that his son is insulated and protected from all the pain which is around. He weaves a small story for him, a story which is hypothetical, which is not real. It's an imaginary world. But he keeps the son occupied in the thought that all this is a game. It is going to get over very soon. So you keep moving forward and enjoy this game. Sadly, the father is not alive at the end of the war, but his son moves on. He moves on with no sad memories. He moves on with hope. He moves on with the spirit that everything is beautiful in this world. Life is beautiful. And that's how we started this program. Yes, this crisis was a tough one for all of us. Some of us lost our dear and dear ones. Some of us lost our friends. We were in hospitals, we were fighting for oxygen. We were fighting with mental issues, emotional issues, and of course health issues. But do we stop there? In a boxing match, when there are two people who are fighting together, the one who is going to win is not the one who has got the most strength. That's the person who will get up even after the 21st punch. Get up and fight back. This is the time to get up. We are going to fight COVID. We are going to fight all the aftermath of COVID. We are not going to let it hang over us like a dark shadow, even as we move ahead into the future. Yes. And that's why Udan came into being. Udan is about vigor. Udan is about being positive. It's not just about the artist. It is about the human being inside you. How much strength do you have inside you? How much beauty and purity you have inside you? Was the crisis able to penetrate you, ruin your spirit? If no, you are the better already. And we welcome you, your spirit, your energy into this beautiful event. Udan has also got a lot of hard work which has gone into the screening side. There have been 3 categories, there have been 3 different labs. We have done a lot of scrutiny, a lot of assessment which is rigorous, which is based on a lot of extremely important criteria. And step by step, we have moved on and filtered some beautiful gems who are going to go forward. We will see them as we announce the results of the semi-final program. But we also want to thank all the gurus, all the mentors of these artists, because without the guru, nothing is possible. And we would love to hear from you what has been your experience about your gurus, about your journey with dance.
as you go on. If we have anybody who wants to share something, this is a good time. We would love to hear from you. Please feel free. Just drop a line in the chat box, wave a hi. You can unmute yourself and share something that you want. Anybody? It would be great if you could share something. And we can see that we have people from all over India. We have people from Assam, West Bengal, Andhra Pradesh. Okay, while we get that sorted, while we have people queuing up, we have a lovely team member here with us. This team member is also a Kathak artist, is a lovely student, and she's a brilliant creative mind. She is into writing, and she's currently starting her journey in the healthcare profession. So may I call upon Vidya if she wants to share something about this event and what we have got. Vidya, please. Okay, incidentally, Vidya was an important part of the process that was there in the program. So I had some questions for Vidya. First of all, Vidya, what did you feel when you saw that we are getting contributions from all over India, in north, east, south, west, and also some amazing parts of the globe? What was your first reaction to this amazing response? When we saw these applications from all over the world, one of those thoughts was, this world, we are a land of culture and heritage, but only we are the reason and only we are responsible for taking it forward. And culture, dance, something, these are the things which are actually uniting us. So I think when I came to know about this whole program, I realized that firstly, because it's a COVID charity program, I realized how the economy has drastically affected the whole world, especially in the rural areas. And also not the ones just from the rural areas, but the people are getting affected mentally also. And like these are the programs, these are the things that are actually helping us get over these anxiety attacks or something like this. During this COVID period, I think there was hardly anyone who didn't really went through a low time. And when we actually came up with this whole idea, we were just thinking about dance firstly, but then when we started getting applications from all over the world, that's when we realized that dance of different forms, but dance itself, one is a big power that unites us. So I think I was really happy to notice that different forms are also coming under one umbrella and actually showing their talents, which is a big thing. Thank you, Vidya. That's a beautiful thought. One more question. A lot of emphasis was given to the human side of an artist. And I guess you have already completed your journey with Kathak and in a marvelous way. And our Ashraf Guruji keep insisting that, yes, the art is important, but make sure that you are a good human inside. Make sure that you don't forget all the right values that we need to be. We are born with and we need to cultivate on and on. Why is this important? Why is the human part important for the artists that we are looking for? Okay, so I think, there was this game we were playing and I had this question which was, do you prefer beauty or what is inside a person, or the personality, beauty or the personality? So I think there's one thing I realized over the time, and that is, whatever is there inside you, whatever there is inside in your brain, everything ends up reflecting on your face. And basically everything that you do. Face actually does come for like 5 seconds, but after that 5 seconds, the 6th second and onwards, it's just about who you are and how you treat people, or like what is actually your personalities. I think everything that's inside you does actually reflect through dance as well, and we have seen that over the time. So I think the human aspect of it does inculcate a very, very, very big part when it comes to showing your talent or showing your art. Like when we see painters and all, we see how like these people seeing some
said it, you spelled it out. Any words of wishes for the participants who have come this far and are going to go ahead? How do you wish them? Firstly, I would like to congratulate each and every one who participated and got to the first round. And I really wish best of luck to each and every one of you. There was also one thing that I was wondering when we were organizing this event. So basically, we have like our classroom, we have participated in multiple dance programs, be it crossing the boundaries of the state, or be it crossing the boundaries of international borders. We have scaled in everything, in every borders. So when we were planning this thing, I realized all of these international or maybe national programs, these become way too cost effective, I think. Be it even going from Udaipur to Jaipur, it does cost a lot. And it does cost in like the travel, the stay, the transportation. So when we actually dotted down the whole program around, we literally realized that इतना सारा जो है ना factors होता है वो भी इसमें हम लोगों ने उसे cover कर लिया. I don't think अभी इस because of these whole corona period, everyone can travel and like everyone can afford a stay in another city or a country. So I think ये जो international programs था, that actually cut down all these financial barriers and everything, and especially now that we are doing it for a charity event, I think इससे अच्छा भी इस वाले टाइम पे क्या Correct. Very right. Thank you so much, Vidya. Yes. Doing this, like everything else in our work, life, entertainment, a lot of virtual stuff has happened. We have gotten so much used to the virtual stuff, but hopefully next year, when we go on to the next milestone, next series of this program, we'll have everyone around us. We will hug each other. We will wish them with all the love and affection that we have, that we are feeling right now. Because let me tell you, we have participants from all over India, from West Bengal to Andhra Pradesh. Also, we have got contributions from Manchester, from Virginia, and a lot of places in the globe. So we are super thrilled and super emotional to get all this amazing interest from your side. And yes, we are going to tell you the winners till this hour. But before that, let's go for another lovely comma. And this time, I would love to. This comma is going to be very melodious one. We have amazing vocal cords with us, Madhura Khatri, who has got something called Chokpura. I have no idea what it means. Let's find out what Madhura is going to get us. This beautiful song from Madhura.
about this program, Shloka Agarwal, who would love to share with you something about the innate spirit of this program and what she looks forward to, what was her idea, what was her effort behind this effort. So Shloka, please come over. Good evening to every participant who's eagerly waiting for the result to come out. कोविड के इस समय में जब हर गति में विराम लग गया था, तब मेरे गुरुजी ने हम सबको मिलकर, हम सब ने मिलकर उड़ान 2021 जो इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन है, उसका आयोजन करने का निर्णय लिया। जैसे आप सबको पता है, यह कार्यक्रम 3 कैटेगरी और 3 लेवल पर बांट कर आयोजित किया गया है। तो और हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने इतने जुनून से, इतनी मेहनत करके जो कार्य किया है, उनकी जो उत्साह था, उसके वजह से हमारी टीम का भी सहायता, हमारी टीम की उत्सुकता भी बढ़ी है। मैं जानती हूँ आप सब सेमीफाइनल्स के रिजल्ट के लिए बेतरबी से इंतजार कर रहे हैं। मैं उन सब पार्टिसिपेंट्स को हृदय से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो हमारे साथ उड़ान 2021 के फाइनल पे हमारे साथ एक उड़ान भरने जा रहे हैं। और सारे पार्टिसिपेंट्स को हृदय से मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ कोऑपरेट कर हमें हमारे प्रोग्राम को 2021 तक सेमीफाइनल्स तक ले आए। और हम आप सबको प्रॉमिस करते हैं कि हम वापस आएंगे ज़रूर। धन्यवाद। और मैं वापस आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो फाइनल राउंड की तरफ चल रहे हैं। धन्यवाद। Awesome, Shloka. See, this is what this event is all about. Being happy, being positive, looking forward. And we have somebody here finally who wants to share something. Veera Chakravarti, most welcome, heartiest welcome. We are just making sure that we can hear you all right. Veera, can you speak a little louder, please? Yeah, now it's good. Please go ahead. Hi, Veera. Good to see you here. Yeah, thank you. Good evening to all of you present here, cultural materials that want to put up at the bottom Zoom. So, about this one, I'd like to share something that this platform and this event is working an opportunity to improve our confidence and to see our better various standing on how much we have to improve and in which field we are good at. So, it's a very good opportunity to see yourself, to judge yourselves. Not to don't compare yourselves with others, but to judge ourselves. And working under Karachi College of Performing Arts and Pacific University to give us this opportunity, to give us this golden chance to perform in an international level. And I want to thank my guru, Saurabh Sharma ma'am. So, even today, I established a perform rather than Kathak. I learned Kathak from past 6 to 7 years. So, in those years, I never tried to perform anything else than Kathak. But this competition gave me an opportunity to perform anything other than Kathak. As a person, I have done this with a mixture of Kathak. So now, very new thing that I was doing Kathak many times over there, and you can just relate yourself to them. So thank you so much. Super. Thank you so much, Veera. So good to hear that the effort that we are making is going somewhere. This is a good moment to ask others. Do we have somebody else who wants to share something? Okay, while we get to that, thankfully we have been joined with another amazing team member. We are a versatile team, if I may tell you so. And Professor Krishna Dave from he's the Vice Chancellor of Pacific University. He is here with us, and I'm guessing he has been watching this event for some time. Sir, we would love to hear from you also, if you can hear us. Professor Krishna ji. Can you hear me?
Yes, yes, we can hear you now. Yes, 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 yes. Namaskar to everyone. And Namaskar. thank you for giving me this opportunities. I wish all the best to all organizers, especially Dr. Saru Shatamek and President Director Hospital. They both are doing a well, like when I see the performance of, I see the initial beginning of the second round. I thought it is going to be, it has started nicely. Like the performance of Gota was so super, and like it is I'm just telling you, being watching this program, finding it very fabulous, and I hope that this program is going to give a good record of on it just platform. Everybody is joining, everybody is enjoying. I can see the face of everybody on this particular screen, and I'm also enjoying the event especially, and I wish all the best to everyone. Like I said by all speakers earlier, that the main purpose of this program is to help the COVID people, and that's why we decided to do something for them. And all the representatives who are participating and who are just enjoying through this program, they are just contributing to all those COVID support. And what I must thank you, I must appreciate you, all the participants, because you are participating, and because of your participation, we are all watching, and because of your all performances, we are getting all entertainment on this platform, and this will directly relate to what the aim or objective is going. So I think this is a novel cause which should admire, and everybody is admired on particular this platform. So my best wishes to all organizers, my best wishes to all participants, and do whatever you want to do. And again, it is like we said, that don't compare. Yes, but you have to perform your best, and I wish you all the best. Thank you very much for providing this question. Thank you. Thank you so much, Professor Navesa. So well said, so well said. Yes. Don't climb the mountain so that the world can see you. Climb it so that you can see the world. And today, that's the spirit you should be looking for. Yes, it's a competition. Somebody will go ahead, somebody will take a pause here. But yes, there's another year to go ahead and try your luck, your effort, and your hard work another time. So we'll do that. Do we have somebody else who wants to share something? If somebody watches Sherlock Holmes, I'm a big fan of Sherlock as always. I would say an amazing and incidentally a very relevant line. Sherlock has solved a very tough case. He's walking out of the flat, and that's when the chief cop, the police officer, he is examining the body, and the forensic guy, he comes over and says, Sherlock is a genius. He's a great person. He's a great man. The cops stops there and says, no, he's not just a great man. More importantly, he's a good man. Here at the Kalashram College of Performing Arts, this good thing, this good word is not an adjective. It's the soul of everything we do here. It's the soul of what we learn here. The art here is not just about the art. It's about being a good human first. Here we listen to this line and we think, घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूँ कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. But here there is a small twist. Here we say, घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूँ कर ले, आज प्यार से और दिल से थोड़ा प्यार किया जाए. Now, when I invite you the next person, invite the next person here, you will just see what I mean. Because she is not just the creative hand of this event, she is the director, she is the spirit, she is the luminary, the moon, the sunshine of this amazing team that we have here. The Kalashram College of Performing Arts, the director, Dr. Very beloved Dr. Saru Sharma, and she will share the results and some highlights of the program. Guruji, most welcome, please take it. Thank you so much, प्रतिमा जी, श्लोका, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी कह सकते हो. यदि मैं ये कहूँ कि हमारे बड़े भाई साहब राहुल जी अग्रवाल साहब, प्रतिभा जी, कलाश्रम फाउंडेशन के CMD साहब डॉक्टर दिनेश जी साहब,
कलाश्रम कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट सेंद्रा मैडम और इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्लोका और हमारे दिल के बहुत करीब प्रतिभा जी। इस कार्यक्रम को प्रो करने में जो दिन रात हेल्प करते रहे मधुरा और हृदय, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की एनर्जी यदि इस कार्यक्रम में नहीं होती तो आज इस कार्यक्रम का जो दूसरा पड़ाव है शायद हमारे साथ नहीं होता। इस कार्यक्रम को जैसा प्रतिमा जी ने बताया, श्लोका ने भी बताया कि कोविड के इस अंधकार पीरियड से एक प्रकाश की लो की ओर बढ़ने की जो एक कोशिश करी थी, वो कोशिश एक कशिश में बदली और ये कशिश आज उड़ान के साथ है। हाँ, उड़ान 2021। आज उड़ान 2021 के स्टेज पर हैं हम और इसमें 2 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे जो कई ऑनलाइन है, जूम पर है, फेसबुक पर है, वो कहेंगे कि नहीं, पड़ाव पूरा तब होगा जब इसके रिजल्ट होंगे। यस, आप लोगों के रिजल्ट के लिए मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ। देखिए बेटा, ये परीक्षाएं और परीक्षाओं का रिजल्ट ये प्रकृति का एक नियम है। इन रिजल्ट पर मत जाइएगा, ये प्रकृति का नियम है। रोज सवेरा होता है, रोज शाम ढलती है और उस शाम के साथ शाम अंगड़ाई लेकर वापस सवेरे की ओर बढ़ती है। तो प्रकृति का ये नियम निभाने के लिए आज मैं इस मंच पर हूँ। इस कार्यक्रम के 3 राउंड हुए। पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड हुआ। इस स्क्रीनिंग राउंड में हमने 3 कैटेगरी रखी, माइनर, जूनियर और सीनियर। हर कैटेगरी में हम लोगों ने सिर्फ डांस विषय रखा। यहाँ पर इस ग्लोबल स्टेज पर हमने भरतनाट्य शास्त्र का फॉर्मूला ही अपनाया, या ये कह सकते हैं वहीं से हमने नृत्य की परिभाषा को सार्थक बनाने के लिए एक उड़ान भरी। कहने का मतलब ये कि हमने नृत्य को क्लासिफाई नहीं किया है कि भरतनाट्यम होगा या कथकली होगा या कुचिपुड़ी या ओडिसी, क्योंकि हमारा पूरा नृत्य शास्त्र भरतनाट्यम पर। जब हमने ग्लोबल स्टेज की बात करी तो हमने सिर्फ एज की कैटेगरी बनाई है और हर एज कैटेगरी में हम लोग नृत्य का आकलन करने वाले हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस ग्लोबल स्टेज पर भारत के 12 देश, 12 राज्य और 6 देश, मतलब 12 स्टेट और 6 कंट्रीज हमारे इस ग्लोबल स्टेज पर जुड़े। इतने सारे पार्टिसिपेंट, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट इन पीरियड में हो रहे हैं, पर इतनी बड़ी संख्या में जो पार्टिसिपेशन था वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये गर्व, ये हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये निश्चित था कि इस कार्यक्रम पे हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं था मिल पाया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे एक शिष्य ने बोला कि हम लोग हर साल नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम करते हैं,
जब हम कोशिश करते हैं, जब चलने की ठान लेते हैं, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और बस ऐसा ही हुआ। जब श्लोका ने बोला कि हाँ, हमने उससे पूछा कैसे करेंगे, अरे आप हमें काम बताते जाइए, हम सब करेंगे। चलो ठीक है। मुड़कर हमने प्रतिमा जी से बोला तैयार हो 2:30 और 3 बजे तक जगने के लिए। उन्होंने बोला बिल्कुल, हम तो वैसे ही इतना बजे तक जगते हैं। मधुरम से पूछा, हृदय से पूछा, बोले कि यस। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4 दिन से हम लोग रोज 2:30 और 3 बजे तक इस कार्यक्रम को कर रहे थे। निश्चित तौर पर हमारी सीनियर जूरी का पेड सपोर्ट हमें है। हमारे जूरी मेंबर को हमारे कंटेस्टेंट का वीडियो भेजना, फिर उनकी यदि कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को बच्चे से संपर्क करना, फिर वापस उनके साथ भेजना, फिर उनके डाटा को लेना, फिर उस डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट कर कंपाइल करना, एज फैक्टर को देखकर। तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल थी। यदि ये मुश्किल ना हो तो मुझे लगता है कि फिर रास्ता काटना आसान हो जाता है। और हम लोग ठहरे आर्टिस्ट, तो यदि सीधा सीधा अपने को रास्ता मिल जाता है तो फिर उस पर चलने का मजा ही क्या। जब तक कुछ कांटे ना हो, जब तक कुछ कंकर ना हो, तो उस यात्रा का आनंद, तो उस यात्रा की याद हमें नहीं रहती। तो बस इसी तरह की हमारी यात्रा थी और निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत रही, बहुत आनंद आया। मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट रहे, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट रहे, उन कंटेस्टेंट को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत छोटे बच्चे हैं तो मैं हृदय से बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी उम्दा प्रस्तुतियाँ यहाँ भेजी कि हमारे जो जूरी मेंबर थे उनको भी कहना पड़ा कि अरे भैया, हम इसमें से कैसे चयन करें। कोविड का 1.5 साल का पीरियड है, फिर भी अनवरत साधना, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट सब्जेक्ट एक ऐसा है कि आप एक ही दिन में कुछ तैयार कर और प्रस्तुति कर दो, ऐसा असंभव है। तो आप लोगों को शायद गुरु जी का साथ भी नहीं मिल पाया होगा, जितना साथ मिला होगा वो सब ऑनलाइन पर रहा होगा। फिर भी ऐसे कठिन समय में आप लोगों के गुरु के आशीर्वाद और आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट उड़ान 2021 का दूसरा पड़ाव आ गया। इस दूसरे पड़ाव के रिजल्ट शुरू करने का जो एक जिम्मा मुझे दिया है, ये थोड़ा सा डर वाला पीरियड होता है। धड़कनें भी बढ़ती है, मन में दर्द भी होता है, क्योंकि दर्द इसलिए, मुझे पता है आप लोग सब हेल्दी बच्चे हो, बड़े प्यारे बच्चे हो। मतलब इतने दिन से आप लोगों से सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात कर करके सच बताए तो मोहब्बत सी हो गई है। और कई बार हमने चाहा भी कि हम आप लोगों से बात करें, और आज का ये वर्चुअल प्रोग्राम भी इसीलिए रखा कि आप लोगों से कुछ रूबरू हो पाए, कुछ बात हो पाए। इस कार्यक्रम में जैसा मैं बता रही थी, 3 कैटेगरी थी, माइनर, जूनियर और सीनियर। चूंकि माइनर छोटे हैं तो सबसे पहले माइनर का रिजल्ट की ही हम बात करें। सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट हम लोगों को मिले वो माइनर कैटेगरी में मिले। तो माइनर कैटेगरी में इतने सारे हमें पार्टिसिपेंट मिले हैं, सिर्फ इसीलिए एक बार ताली बजा दो। उसकी वजह ये, क्योंकि माइनर में 5 ईयर 5 साल से एज ग्रुप चालू हुआ था। तो 5 साल का बच्चा जो है वो कितना छोटा होता है, उसे प्यार से बहलाना, फुसलाकर
उसको प्रैक्टिस कराना, क्योंकि 5 साल का बच्चा अपने मन से कभी भी नहीं कहेगा कि चलिए हमें प्रैक्टिस करवाइए। उस बच्चे को प्रैक्टिस करवाना, उसे ड्रेसअप करवाना, मेकअप, छोटे बच्चों को इस तरह से मेकअप लेकर तैयार करना बिग टास्क। तो जिन मदर ने उन लोगों के साथ मेहनत करी है, जो गुरुओं ने उनके साथ उनको संबल दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है, उन्हें लिफ्ट किया है, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। कुछ बच्चे मुझे इस प्रतियोगिता के दौरान ओडिसी के भी देखने को मिले। अब ओडिसी नृत्य जिसका कोट ही इतना भारी होता है, उसको लगाना, उसकी जो ज्वेलरी होती है वो बहुत हेवी होती है, तो इतना सब कैरी करके फिर डांस करना, ये सब आप लोगों की साधना, आप लोगों के सतत प्रयास का नतीजा है। हमने बताया कि माइनर में हमें बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट मिले हैं, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने निश्चित किया था, हमें फर्स्ट राउंड में 120 पार्टिसिपेंट मिले थे और उसमें से स्कूटिंग कर 50 हमारे दूसरे पायदान पर थे। तीसरा और फाइनल राउंड हमारा ऑनलाइन पर होना है। हमारा जूरी पैनल ऑनलाइन पर रहेगा और आप लोगों को डांस करते हुए हम सभी लोग देखेंगे। तो उस दौरान समय का भी इशू रहता है। तो जैसा हमें ऊपर से ऑर्डर मिली थी कि हमें हर कैटेगरी में 8 पार्टिसिपेंट्स, 8 कंटेस्टेंट रखने हैं, पर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था माइनर के लिए। तो मैं जूरी आप लोगों से भी क्षमा चाहूंगी कि हम लोग कितना ही हमने कोशिश किया, पर वो जो 8 का फिगर था वो हमारा 10 पर चला गया। और आप मुझे सुन रहे होंगे और आपका जैसा आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के साथ ही मैं इस लिस्ट को आप लोगों के सामने साझा करती हूँ। माइनर कंटेस्टेंट में, माइनर कैटेगरी में फर्स्ट राउंड सेलेक्ट कर दूसरे राउंड पर आए और दूसरे से तीसरे राउंड पर जाने वाले बच्चों में फर्स्ट है आर्या तनुश्री। आर्या तनुश्री ओडिसी से है और आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी थी। आर्या तनुश्री माइनर का सेकंड पार्टिसिपेंट, सेकंड कंटेस्टेंट जो कि सेकंड राउंड को पार करके थर्ड की ओर बढ़ा है, वो है सुहा तन्वी। सुहा तन्वी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप आंध्र प्रदेश से जुड़े थे। तीसरी पार्टिसिपेंट जेनिका पुरोहित। जेनिका पुरोहित राजस्थान से है। चौथी है माही जेटली। माही जेटली कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। माही के बाद वेदंतिका नाथ। वेदंतिका नाथ, आप आसाम से हमारे साथ रही हो। 6 नंबर है स्वच्छता रॉय। स्वच्छता रॉय वेस्ट बंगाल से। 7th नंबर आन्या पारिक राजस्थान। संचालिका घोष वेस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल। 9th आयुषी सरकार। आयुषी स्टेज पर भी दिखाई दे रही है। आयुषी सरकार, आप वेस्ट बंगाल से। और लास्ट 10वें नंबर पर है परिधि जैन, आप भी राजस्थान से। यदि लिस्ट के नाम को बोलने के दौरान आप सुन नहीं पाए हैं तो चिंता ना करें, आप सभी
को सूचनाएं दे दी जाएंगी फेसबुक पर भी और आपको व्हाट्सएप पर भी। आप सभी माइनर ग्रुप को बहुत बहुत हृदय से बधाई। अगले राउंड की ओर चलती हूँ। जूनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में पहले नंबर पर है, जूनियर ग्रुप में पहले नंबर पर है ऐश्वर्या आर, कर्नाटका। ऐश्वर्या आर, कर्नाटका। आप भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम कई सालों से आप भरतनाट्यम के साथ नंबर हैं और आपका जो परफॉर्मेंस था भरतनाट्यम और साउथ बॉलीवुड को जो आपने मिक्स कर वो पीस किया था, स्पेशल कमेंट है आप लोगों के लिए, ऐश्वर्या के लिए, कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और हम लोग आपको बधाई और आशीर्वाद देकर कहेंगे कि अगले राउंड में इससे भी और खूबसूरत एनर्जी के साथ आप उपस्थित हों। जूनियर ग्रुप में दूसरे नंबर पर है दिया पारिक। आप यूएसए वर्जीनिया, दिया यूएसए वर्जीनिया से है दिया पारिक। तीसरे नंबर पर है मन्नत श्रीवास्तव, वॉशिंगटन यूएसए। प्रीशा गांधी राजस्थान से, गौरी प्रकाश नोएडा उत्तर प्रदेश। जूनियर कैटेगरी में छठे नंबर पर है कामाक्षी त्रिपुरा हैदराबाद। सातवें नंबर पर दिया शिमाली राजस्थान और आठवें नंबर पर है अंकिता मैनचेस्टर यूके। मैंने अभी अंकिता को स्टेज पर देखा था, यदि अंकिता यूएसए से जुड़ी, यूके से जुड़ी हुई थी, यदि वो है अभी और बात करना चाहे तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकती हो। तो माइनर और जूनियर ग्रुप को बहुत 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 बधाई। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनर जूनियर बोल दिया तो फिर सीनियर होगा। बिल्कुल, मैं सीनियर के साथ भी जुड़ रही हूँ, पर यहाँ थोड़ा सा मैंने पोज लिया। उस पोज लेने की वजह मैं बताती हूँ। जैसा हम बता रहे थे, माइनर में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और स्पेशली ऑर्डर था कि नहीं, ये जो कह सकते हैं एसेट है हमारी, कल्चरल एसेट, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, लिफ्ट करना है। ठीक इसका थोड़ा सा उल्टा सीनियर ग्रुप के साथ हुआ। सीनियर ग्रुप के साथ इंस्ट्रक्शन था, दे आर वेरी 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 सीरियस, सो इनको बहुत ध्यान से आपको रीड करना है। इस प्रतियोगिता में 5 साल से लेकर 55 ईयर तक के पार्टिसिपेट रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 55 ईयर के जो कंटेस्टेंट यदि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपको बहुत धन्यवाद सर। सर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप हमारे से भी बड़े हैं और मैं आपसे वापस निवेदन करूंगी कि अगले समय अगला जो पड़ाव रहेगा, इस पड़ाव में भी आप हमेशा हमारे साथ रहें। आपका और आपकी संस्था का हमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। सीनियर ग्रुप की कैटेगरी लेती हूँ और इसमें फर्स्ट है मितुला पांडे राजस्थान। मितुला पांडे राजस्थान। नृत्य श्री विजयन ओमान मस्कट। नृत्य श्री विजयन, आप खुद टीचर हैं ओमान मस्कट में और आपने केरला की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले राउंड में है मीमांसा वर्मा कर्नाटका। मीमांसा खुद एक प्रोफेशनल डांसर है। आपके YouTube चैनल पर बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं और आप इतने अच्छे प्रोफाइल के साथ उड़ान से जुड़ी हैं, इसके लिए हम दिल से तहे दिल से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ आशीष देते हैं। बस इसी तरह से हमारी कल्चरल की यात्रा चलती रहे और हम रोज इसमें कुछ नए आयाम जोड़ते रहे। सीनियर कैटेगरी में अगले पायदान पर है आध्या वर्मा शिकागो। आध्या वर्मा शिकागो।
शिकागो से, ख्याति भट्ट गुजरात से, और ख्याति यदि आप स्क्रीन पर हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम निश्चित तौर पर आपसे बात करना चाहेंगे। आपके बराबर से हमें जो मैसेज है, आपके वीडियो के साथ जो मैसेज है, मैं मेरी पूरी टीम के साथ वो मैसेज शेयर कर रही हूँ। प्रतिभा जी इतना खूबसूरती से उसने उड़ान के प्रोग्राम को इलोबरेट किया, और उनका ये कहना था कि जैसे ही मैंने इस उड़ान के बारे में सुना कि उड़ान कोविड चैरिटी इवेंट है, तो बोले कि मैंने तुरंत बस यही निश्चय किया कि मैंने इस प्रोग्राम में जाना है। और आप देखेंगे लास्ट डेट 5 तारीख को 5 बजे जब फर्स्ट राउंड में जब आप आई थी 21 को, तो 5 बजे लास्ट राउंड का टाइम था और आपने 4 बजे इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। तो कुछ इतने अच्छे कंटेस्टेंट हमें मिले कि इवन आप लोगों की इस उत्साह से हम सरोकार हो रहे हैं। तो ख्याति बहुत प्यारी बच्ची बड़ौदा से, गुजरात से, बहुत बहुत बधाई। और अगले राउंड के लिए आप तैयार हो। सीनियर ग्रुप में एक और बच्चा है, प्रियंका बजाज, राजस्थान। ख्याति आप स्क्रीन पर हो, बिल्कुल हम आपसे बात करना चाहेंगे। मीमांसा वर्मा को भी मैं देख रही हूँ, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहें, यस आयुषी सरकार में आपको भी देख पा रही हूँ, तो बिल्कुल आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ख्याति मैं बात करना चाहूंगी आपसे। ख्याति भट्ट, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Yes, very good evening. Thank you so much for selecting me in this, and I'm very thankful to you for your warm wishes. Thank you so much. तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। कैसे आपको इस कार्यक्रम की सूचना मिल पाई थी? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा हम ये पूछ रहे थे, आपको इस कार्यक्रम की सूचना कैसे मिली? आपको इस कार्यक्रम का इंफॉर्मेशन कैसे मिला, कैसे पता चला उड़ान के बारे में? ओके, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि करुणा आश्रम जो है एफिलिएटेड बिल्कुल, तो मैंने उसी लिए उसने मुझे बोला कि ये कंपटीशन है, तो देखो अगर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आज लास्ट डे है। तो मैंने सब देखा, डिटेल देखी, सब देखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली कोविड चैरिटी है, कोविड चैरिटी शो है, तो मैंने सोचा कि मैं कभी देखी पार्टिसिपेट, ये चांस मुझे वापस नहीं मिलने वाला। तो मैं हर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ कि कहाँ मुझे अपने आप को अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिले और कहाँ मैं कुछ हेल्प कर सकूँ कुछ लोगों की। तो इसमें दोनों था, एक तरफ टैलेंट था, मैं शोकेस हो रहा था, और एक तरफ किसी की हेल्प भी हो रही थी। मैंने कुछ सोचा नहीं, एंड इमीडिएटली मैंने किसी को कॉल किया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछा, एंड देन इमीडिएटली मैंने वीडियो ऑन सब चैरिटी कर दी, तुरंत ही कर दी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू ख्याति। बिल्कुल ये कार्यक्रम कोविड चैरिटी इवेंट था, और हमारे कार्यक्रम के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेक्रेटरी राहुल साहब हमारे इस कार्यक्रम में हैं। आपका बहुत बड़ा उदयपुर में एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में कोविड से जो रिकवर हो रहे थे उन लोगों के साथ काफी आपने काम किया है, और हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठा कर दिया था, और 11 लाख रुपया हम लोग इस कार्यक्रम से कलेक्ट कर पाए हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये अमाउंट राजस्थान के सीएम साहब को फॉर द वैक्सीनेशन जाने वाला है आफ्टर द फाइनल राउंड विद अवर पैनल। तो मैं राहुल साहब को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके अथक प्रयास से हम लोग ये एक बड़ी राशि
जहां तक नहीं पहुंच पाया। बहुत धन्यवाद ख्याति आपको जुड़ने के लिए। मीमांसा मेरे साथ है, मीमांसा वर्मा, आपका बहुत स्वागत है कर्नाटका से। नमस्ते वंदना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपके वेरी नाइस एंड पार्ट ऑफ सच अ नोबल selfless charitable organization and such a beautiful show. Thank you so much. I'm lost for words. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या. Thank you so much for this day and having given me an experience कि मैं कुछ किसी और के लिए भी कर पाऊँ, not just for myself but for the other. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आपके जो वीडियो हम लोग ने यूट्यूब पर भी देखे हैं, बहुत आनंद आया। और आप जैसे कंटेस्टेंट यदि हमारे इस जर्नी में जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। सिर्फ एक शुरुआत है, हमें अभी तो और उड़ान भरनी है। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया मीमांसा आपसे मिलकर, और आगे हम इसी तरह आपसे जुड़ते रहें और आपका सहयोग, आपका प्यार आश्रम के, और सिर्फ आश्रम ही नहीं, हमारे इस कला जगत के परिवार को ये आशीर्वाद मिलता रहे और आप जैसे कंटेस्टेंट ऐसे ही बढ़ते रहें, फूलते रहें और आपकी आर्ट की खुशबू फैलती रहे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीमांसा। मेरे साथ आयुषी सरकार जुड़ी हुई है, बहुत प्यारी बच्ची आयुषी, आपको मैं जोड़ना चाहूंगी प्लीज। Yes, हाँ, बोलिए बोलिए आयुषी। Yes, बाकी सभी अनम्यूट। No problem, take your time, no problem sir. Yes Ayush. आपका एक्सपीरियंस बताएंगे आयुषी, क्योंकि ये प्रैक्टिस और रिकॉर्डिंग ये सब इन हाउस हुआ है। आपको अकेले करना पड़ा क्योंकि गुरुजी आपके साथ नहीं होंगे, घर पर ही प्रैक्टिस किया, और मम्मा शायद रोज कहती है कि चलिए प्रैक्टिस करिए, वीडियो बनाना है, वीडियो भेजना है। कैसा लग रहा था उस समय? Thank you बेटा, thank you, very very congratulations, thank you आयुष। जुथिका, जुथिका आप मेरे साथ जुड़े हैं, क्या बात करना चाह रहे हो जुथिका? Yes, जुथिका आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बात करना चाहोगे? ये सब अनम्यूट है, बोल सकते हैं, बोलिए। ओके, ओके, सेम है। ओके, 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 राइट, राइट। दावे सर, मैं आपको देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है, आप पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इस पड़ाव पर आपको कैसा फील हो रहा है? यस सर। हाँ सर। सर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स विनर हुए हैं, आप उन्हें कोई बेस्ट विशेस देना चाहें कि नेक्स्ट राउंड? यस सर, सर दवे सर, मेरी तरफ से आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। और मैं जो अभी बच्चों का फीडबैक जो देख रहा था, मैं
सारे पार्टिसिपेंट्स का और सारे कंटेस्टेंट का। इट वाज फैबुलस और उनको पता है, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन सबको पता है कि एक कोविड चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है और उनका जो कंट्रीब्यूशन भी है वो उसी तरह से हो रहा है। जो फीडबैक सब बच्चों का आया है और जो सारे आपने अनाउंसमेंट आज किए हैं वो भी जो मैं कैसे देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड और वो नाम सुनते जो भी चैरिटी मुस्कान दिख रही है वो कोविड चैरिटी में जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा आपका भी सूरज है, आपने बहुत टाइम लेके और इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। राहुल अग्रवाल साहब ने अनाउंसमेंट किया है 11 रुपीज का, वो लाइक एक बहुत बड़ा मिशन है और वो फॉरेन चले जाएगा। मतलब आज की तारीख में हम सोचें कि एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनको बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगे, तो एक साथ इसका हेल्प भी करना चाहूँगा कि हम सब ने गंगा ग्रुप के अंदर एक छोटा सा प्रयास करके माध्यम का हॉस्पिटल भी स्टेब्लिशमेंट किया था। तो ऐसा करके कोविड लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है और इस माध्यम से आपके माध्यम से मैम राष्ट्र और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से वो सभी लोगों को रीच कर पाएंगे क्योंकि कोविड सफर है, उनको कोविड सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो शायद इस अमाउंट से हम लोग ऊपर पहुंच पाएंगे और उसको उनकी हेल्प होगी वो करेंगे। मैं वंस अगेन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने ऐसा सोचा श्रोता अग्रवाल ने और आपने मिलकर जो प्रोग्राम को डिसाइड किया है मेरी तरफ से वो सभी लोगों को पहुंचेगा और थैंक यू वंस अगेन। और पार्टिसिपेंट और कंटेस्टेंट उनके बिना ये प्रोग्राम कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा और मैं थैंक यू देना चाहूँगा वंस अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स को एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी। हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्यारा सा मस्ता सा चेहरा जेडी का पुरोहित, जेडी का राजस्थान से बात करना चाहोगी? यस मैम। ओ बोलिए, कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा, मैं जो पार्टिसिपेट हुई जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट हो गई। तो बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत करिए। अब वापस मेहनत का समय है क्योंकि 3 राउंड रखे गए हैं। 3 राउंड रखने के पीछे भी इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि हम बहुत अच्छी तरह से फिल्टरिंग भी कर पाएं और जिस बच्चे का जो में स्टाइल है उस स्टाइल को दिखाने का भी उसे मौका मिले। तो जो बच्चे तीसरे राउंड में जुड़े हैं उन स्टूडेंट्स को सभी को प्योर क्लासिकल प्रिपेयर करना है। बहुत ध्यान से आप सुन लें। जो सीनियर पैनल हम लोगों के साथ जुड़ने वाला है वो सीनियर पैनल का भी यही सजेशन था कि एक राउंड आपको सेमी क्लासिकल का बॉलीवुड का मिल गया था, पर आखिरी और फाइनल राउंड आपको आपकी प्योर आर्ट के साथ ही परफॉर्म करना है। तो जो बच्चा ओडिसी का है वो ओडिसी, जो भरतनाट्यम से है वो भरतनाट्यम, जो कथक से है वो कथक परफॉर्म करेगा। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कथक का भरतनाट्यम से या भरतनाट्यम का कुचिपुड़ी से इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे जूरी पैनल का है। आपके इस कार्यक्रम को जज करने के लिए इस देश के नामी बहुत प्रतिष्ठित आर्टिस्ट शब्द नहीं कहूंगी, गुरु कहूंगी, गुरु हमारे इस मंच पर आएंगे। हम तीसरा पड़ाव 25 जुलाई को लेने वाले हैं और वो हमारा फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड मॉर्निंग 10 o'clock 10 बजे रखा गया है और 10 बजे रखने के पीछे भी वजह में बता दूं और आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे यूके की टीम है, यूके के कंटेस्टेंट भी हैं, कनाडा से बच्चे जुड़े हुए हैं, वॉशिंगटन से जुड़े हैं, वर्जीनिया से जुड़े हैं, शिकागो से जुड़े हैं, मस्कट से, तो वहाँ पर टाइम जोन का वेरिएशन रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि 10 o'clock का 10 बजे का समय हमने रखा है। 25 को हम
इस कार्यक्रम को इसलिए भी करेंगे क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी और हमारा जो पड़ाव या ठहराव होगा वो गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब ये कह सकते हैं हम घूम फिर कर वापस उसी आंगन में आएंगे, क्योंकि हमें अभी और फलना है, अभी हमें और बड़ा होना है। अभी तो हम छोटे पौध हैं, हमें अभी वृक्ष बनना है। आप लोगों के साथ की यात्रा बहुत सुंदर रही है, बहुत आनंददायी रही। और भी यदि कोई बच्चा है जो कि जुड़ना चाहे, हमारे मधुरम जी आप एक बार स्क्रीन ऑन कर दीजिए। यदि और कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि जुड़ना चाह रहे हैं, वो हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपका इस मंच पर स्वागत है। और ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इजाजत लेंगे, पर इजाजत देने से पहले हमारे स्टेज में बहुत ही अलग अलग चेहरे हैं। अलग चेहरों से मतलब ये कि देखिए, कोई भी आपने टास्क करना है, इवन घर पर भी आपने कोई कार्यक्रम करना है, तो सिर्फ 1 और 2 से वो कार्यक्रम पूरा आयाम नहीं मिल पाता है। आपको कई बार लगता होगा घर में कोई गेस्ट आए हैं और उनके लिए डिनर तैयार करना है। हमें लगता है कि हम ही लोग खाना बना रहे हैं, हम ही ने तैयारी की, और जब कोई छोटा बच्चा चलकर आता है, मैं टेबल जमा दूं, हम कहते हैं हाँ बेटा जमा दो, तो उसका भी उस कार्यक्रम को डेकोरेट करने में, सेलिब्रेट करने में एक अहम हिस्सा होता है। तो इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में हमारी जो टीम में जो अलग अलग लोग जुड़े हैं, उन सभी से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहती हूँ। प्रतिभा जी एक बहुत ही प्यारा चेहरा है। प्रतिभा जी के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग पिछले 2 महीने से मॉर्निंग इवनिंग अपनी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अपने अपने जो काम है, उन कामों से जब फ्री होते हैं, फ्री होते ही हम लोग इस उड़ान की तैयारी में लग जाते थे। इनका सहयोग नहीं होता तो निश्चित तौर पर आज ये प्रोग्राम इस स्टेज पर नहीं आ पाता। तो प्रतिभा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद, और आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। हम हमेशा आपके सहयोग के अभिलाषी रहेंगे। इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख चेहरा ये टेक्निकल मेंबर है हमारे साथ, यो सन है, हमारे बेटे हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि ये जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, ये इस टेक्निक से जितनी अपडेट रहती है, उतना अपडेट होने में हम लोगों को समय लगेगा, और हम लोगों के पास ना टाइम है ना पेशेंस। रोज सवेरे शाम किस टेक्निक को यूज करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए। तो इनका जो सहयोग है, मैं इस मंच पर खड़े रहकर मधुरम आपको बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपका ये सहयोग नहीं होता तो इवन इसकी जो डिजाइनिंग है, जब डिजाइनिंग बन रही थी, हम लोगों ने अलग अलग जगह भेजा हुआ था, तो हम भी सेटिस्फाई नहीं थे। इन्होंने बोला कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं? उनका चलिए एक बार थोड़ा ट्राई करिए, और अभी तक फाइनल तक इनका बनाया हुआ फ्लायर पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, इनके बनाए हुए डिजाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी, और अपेक्षा करूंगी कि 25th तक अनवरत, और 25th क्या, हमें तो पूरी उम्र तक आपके साथ अनवरत सहयोग की अपेक्षा है। हृदय राइटिंग का जो पार्ट है, कैसे ड्राफ्टिंग है, कैसे हमें अपलोड करना है, ये सब काम आप लोगों का, मतलब अदर जो कंट्रीज थे, अदर कंट्रीज के साथ हमको जो कोलैबोरेशन करना था, उसमें
हृदय और प्रतिमा जी ने मिलकर जो कोलैबोरेशन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही सहयोग बना रहे और हम लोग जब आप लोगों के सामने खड़े रहते हैं तो हमको लगता है अभी तो हमने बहुत पढ़ना है, अभी तो हमें बहुत सीखना है। तो बच्चों आप लोगों का हमारे इस जनरेशन का सहयोग हमारी स्ट्रेंथ है, आप लोग हमारी स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ हमारी बनी रहे। बहुत धन्यवाद हृदय से। प्यारा बच्चा कोऑर्डिनेटर, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बड़ा धमाका है। आपको बहुत आशीर्वाद, बस ऐसे ही इतने ही प्यार से, इतने ही सज्जनता के साथ आप अपने सभी गुरुओं के साथ चलते रहो और हर पल कुछ न कुछ अपनी झोली में इकट्ठा करते रहो। पता नहीं कब कितना काम आ जाए, हमें हमारी झोली बहुत भारी बनाकर रखनी है। बहुत धन्यवाद कोऑर्डिनेटर श्लोका अग्रवाल, श्लोका जी को, राहुल भाई साहब, सबको जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो क्या होता है, हम उस कड़ी को भूल जाते हैं। जैसे अक्सर होता है, घर में खाना बहुत अच्छा बना है पर बनाने वाले को भूल जाते हैं। इसी तरह से प्रीति जी अग्रवाल हमेशा पेन लेना, और पेन मतलब इतने जुनून के साथ कि उस जुनून में यदि कुछ गड़बड़ हो रही तो हो जाए, चलिए दूसरा, बट उद्देश्य हमारा परफेक्शन, तो वो सहयोग प्रीति जी का हमेशा हम सभी को मिलता है, ऐसा हृदय से धन्यवाद। राहुल भाई साहब का सहयोग हमेशा मिलता रहा है, हक से हम लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा अपेक्षा करूंगी इन सभी के साथ। हमारे इस फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी दिनेश गंधी सर, आपके सहयोग के बगैर हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। पिछले 2 दिन पहले रात को 2:30 बज गया था जब हम स्पीच को सबके साथ सर्कुलेट कर रहे थे। आप उठकर आए 2 बजे, पहले 12 बजे आए, अरे तुम लोग सोए नहीं, फिर 2 बजे आए, अरे तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो, फिर 2:30 बजे आकर कहते चलो अब मैं चाय बना ही लेता हूँ। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब क्योंकि यदि ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं बने, नहीं मिले, पिछले कुछ दिनों से ये हम बताए कि कभी लंच स्किप होता है, कभी डिनर स्किप होता है, ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू प्रिपरेशन। इस पूरे प्रोग्राम में जो इस टेक्निक के साथ हम लोग देख पा रहे हैं, वीडियो के साथ, हमारे रोहित भाई साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद इसलिए भी कि आपको हमें 25 तारीख तक, 25 तक इसी तरह से चलना है। आज यदि हम लोगों से कोई कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को हम लोग और सुधारेंगे, ऐसा मैं आपसे सभी से अपेक्षा करूंगी। स्क्रीन पर मेरे साथ जितने भी मेरे साथी लोग जुड़े हैं या मेरे सीनियर्स जुड़े हैं या स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद। जो जीते हैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं कि अगले राउंड में उसी उत्साह के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगी और प्रतिमा जी को मंच की ओर आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्रतिमा जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I think this is Sanjay sir. Yes, yes. And yes, we were saying thank you to everybody in the team. We have Sanjay sir also with us, and he's been an amazing part of this journey. Minute details, big things, he has been taking care of it. So thank you everyone. And yes, now I think we all ready and pumped up for the final round. And if you see a flock of birds flying, because we are talking of Quran, wings, spunk, you never see just a single bird who's going far. You always see a flock. तो आज बस ये है कि उस फ्लॉक का पैटर्न चेंज हो गया है ड्यू टू सम एरोडायनामिक्स। कुछ लोग थोड़ा सा पीछे, कुछ लोग थोड़ा सा आगे, बट उड़ना हम लोगों को साथ में है। हमारी फैमिली जो है उड़ान की बहुत दूर तक जाएगी, सिर्फ इस साल की बात नहीं है, बहुत आगे जाना है।
So today is the second milestone. We are all very excited, very thrilled, and all the best to all the winners and all the people who have joined us in the journey. Let us meet again on 25th, and something very exciting because this is a cultural carnival. It is going to be a cultural epic thing. So be there, and we will, before we close, Preeti Agarwal ji हमारे साथ हैं. She is the chairperson of Pacific University. So Preeti ma'am, if you could share some kind words with us. आप सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की चेयरपर्सन यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो यहाँ पे विनर्स हुए हैं। मैं जानती हूँ आप सबने बहुत मेहनत की है और इस पड़ाव तक आप आए हैं। आप सबको इस उड़ान 2021 में स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करके जो फाइनल राउंड है उसमें आप तैयारी करके उतरेंगे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह हमेशा होती है। श्लोका मेरी डॉटर है, इसकी छोटी सी चाह थी जिसको रामा सर्वोच्च न्यायालय ने दिखाई है हाथ पकड़ के। इन दोनों की जो जुगलबंदी है आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा है। 4 साल की उम्र थी श्लोका की जब मैं उसको यहाँ पे कलाश्रम में लेके आई थी और आज हम जिस स्टेज पे है उसे देख के मुझे बैठे बैठे मतलब मेरे चेहरे से जो मुस्कान है वो हट ही नहीं रही है। तो परफेक्ट टाइम था जब श्लोका घर में थी एंड उसने मुझसे आगे एक दिन कहा कि अगर मैं आज कॉलेज में घर पे नहीं होती तो हम बच्चों को कितने सारी अपॉर्चुनिटीज मिली होती, हम कितने परफॉर्मेंस दे चुके होते नेशनल इंटरनेशनल जो कि हमेशा मैम लेके जाती है। तो बहुत से बच्चे मेरी तरह घर बैठ के अभ्यास भी नहीं कर रहे होंगे, क्यों नहीं हम उन सब बच्चों के लिए कुछ सोचिए। और मैंने सिर्फ मैथ से थोड़ा सा डिस्कस किया एंड उन्होंने इतना उत्साह से हमारा साथ दिया। श्लोका का हाथ पकड़ के आज हम इस मुकाम पे हैं, मैं उनका तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस कोविड टाइम के लिए जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है, हमने जो अमाउंट इकट्ठा किया है ये हम वैक्सीनेशन सीएम फंड को देने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें और जो कोरोना जैसा डेडली वायरस है उससे हम अपने आप को बचा सकें। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. And on that very positive and very hopeful note, let us wrap up today's session. But like ma'am reminded us, be there on 25th July on time. We'll gather again. And many thanks to all the people who have joined us from all over the world. We really appreciate your time. It's a Sunday evening, but you still stood with us, sat with us, heard us, participated, shared your thoughts. We really value it. So we count you as a very important part of this event. Please keep the journey going and let us meet us again on 25th of July, 10 a.m. sharp. See you there.